नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। ब्लैक फंगस के लक्षणों के साथ उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में एक महिला भर्ती, नहीं आई जांच रिपोर्ट। सिलीगुड़ी निवासी एक व्यक्ति को ब्लैक फंगस के लक्षणों के साथ उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि उसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। दूसरी ओर डॉक्टरों का कहना है कि महिला के शरीर में ब्लैक फंगस या म्यूकोमाइकोसिस के लक्षण है। पीड़ित महिला को निगरानी में रखा गया है। इस बारे में रविवार को उत्तर बंगाल पब्लिक एंड हेल्थ के ओएसडी डॉक्टर सुशांत कुमार रॉय ने कहा कि यह कोई नई बीमारी नहीं है। महिला को ईएनटी विभाग में भर्ती कराया गया है। ज्ञात हो कि महिला कुछ दिन पहले कोरोना से संक्रमित हुई थी। ठीक होने के बाद उसकी आंखें और चेहरा सूज गया था। उसकी आंखों की रोशनी भी कम हो गई। আমি প্রায় সারা উত্তরবঙ্গ জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি গতকাল রাত্রিবেলা ফিরেছি ওদিক থেকে, মালদা, বালুঘাট, ইসলামপুর, রায়গঞ্জ ইত্যাদি জায়গা থেকে। আমাদের যেটা আশঙ্কা যে পেশেন্ট যেরকমভাবে মানে বাড়ছে, তাদের বেডের ব্যাপারটাকে আমাদের খুব সিরিয়াসলি ভাবতে হচ্ছে। আমরা ভেবেছি যে যত বেড বাড়াচ্ছি তত যেন মনে হচ্ছে আর একটু বেড হলে ভালো হয়। আপনারা জানলে খুশি হবেন, এই মুহূর্তে দার্জিলিং জেলাতে, যেটা আমি নর্থ মেডিকেল কলেজ আপনারা জানেন সবচেয়ে হাইয়েস্ট ক্যাটারিং সেন্টার হওয়ার কথা, এটা টারশিয়ারি হসপিটাল এবং মানুষজন নর্থ মেডিকেল কলেজ আসতে পছন্দও করে। যার জন্য এই মুহূর্তে আমাদের 300টা বেড বলে গেছিলাম, কিন্তু কোনো একটা গ্রুপ বলেছিল বাকিটা আমরা করব, সেটা দেরি হচ্ছে বলে আমরা সেটা করতে চাইছি না। আমরা নিজেরাই 400 বেডস আগামীকাল থেকে আমরা শুরু করতে পারবো বলে আশা করছি। 400 বেড নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজে আমাদের একটা জায়গাতেই করা যায় না, বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন সেক্টরে করা হয়। যেমন বাচ্চাদের জন্য করা, লেবার রুম, সার্জিক্যাল ওয়ার্ড, এদের জন্য করা। এইভাবে আমরা 400 বেড আশা করছি আজকে সন্ধ্যাবেলা আমরা আইসিএমএস পোর্টালে তুলতে পারবো। একটু তো সময় লাগে, কারণ ওই জায়গাগুলোকে ঠিকঠাক গুছিয়ে নিয়ে তারপরে দেওয়া। আশা করছি আগামীকাল থেকে, না হলেও আগামী পরশু থেকে 400টা বেড ওপেন থাকবে। এখন যেটা আছে তার থেকে প্রায় 100 ফাংশনাল বেড যা আছে তার থেকে প্রায় 150-56টা বেড এক্সট্রা করা হচ্ছে। এছাড়া দার্জিলিং জেলাতে বিভিন্ন জায়গাতে আমরা, যেমন আপনারা জানেন দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল পাহাড়ে, এর আগে আমি গিয়েছিলাম 65টা বেড জায়গা করে দিয়ে এসেছিলাম। তো ন্যাচুরালি বললাম আমার সময় সঙ্গে বেড চালু করা যায় না। ওখানে এই মুহূর্তে মানে গতকাল পর্যন্ত 37টা বেড রানিং কন্ডিশনে আছে। আমাকে যা বললেন সিএমএইচের পক্ষ থেকে যে ওটা আগামী 2 দিন বা 3 দিনের মধ্যে বাকি বেডগুলো ওখানে রান করানো যাবে। একটু সমস্যা আছে, যেহেতু আমরা ওটিটাকে ওখানে রাখতে চাইছি। যে সমস্ত কেসগুলো অপারেশনের দরকার পড়ে, সেই সিজারিয়ান সেকশন হোক বা সার্জিক্যাল কেস হোক, সেগুলোকে যদি একটু সময় লাগে, কিন্তু ওটা আগামী 7 থেকে 8 দিনের মধ্যে টোটালটাই 65 বেড দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল চালু করা যাবে, যেটা এখন 37টা আছে। এছাড়া আপনারা জানেন যে আমরা কার্শিয়াংয়ে এর আগে বলেছিলাম যে 18টা বেড আমরা চালু করতে যাচ্ছি, এবং ওখানে 18টা বেড অলরেডি রানিং কন্ডিশনে আছে। 18 জন পেশেন্টকে আমরা ওখানে রাখতে পারবো। कोरोना मरीजों के लिए एम्बुलेंस का काम करेगी। पर्यटकों को ढोने वाली लग्जरी टैक्सियां सरकार की ओर से द्वारे एम्बुलेंस योजना के तहत निःशुल्क सेवा शुरू। सिलीगुड़ी शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पर्यटकों को ढोने वाली लग्जरी टैक्सियां अब कोरोना मरीजों के लिए एम्बुलेंस का काम करेगी। कोरोना महामारी के दौरान जहां सिलीगुड़ी के विभिन्न स्वयंसेवी संगठन लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, वहीं आज चालक संघ के सदस्यों ने लोगों की सेवा के लिए भी मदद का हाथ बढ़ाया है। सिलीगुड़ी लग्जरी ड्राइवर्स यूनियन की पहल पर सिलीगुड़ी नगर पालिका के सहयोग से आज से दरवाजे पर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया। फिलहाल कुल 18 लग्जरी टैक्सियां एम्बुलेंस के रूप में कोरोना मरीजों की सेवा में उपलब्ध रहेगी। आईएनटीटीयूसी के उत्तर बंगाल के कोऑर्डिनेटर आलोक चक्रवर्ती ने कहा कि ये लग्जरी टैक्सियां कोरोना मरीजों एवं गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों को
अस्पताल पहुंचाने व घर लाने के लिए इस्तेमाल होगी। इसके लिए कोई किराया नहीं लगेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा, श्रमिक भवन में टैक्सी चालकों को ठहरने और खाने की व्यवस्था की गई है। আমরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা ব্যানার্জি এবং সর্বভারতীয় যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি এমপি অভিষেক ব্যানার্জির কাছ থেকে যে সংকল্প নিয়েছিলাম যে মানুষের সেবায়, মানুষের কাছে, মানুষের পাশে থাকতে হবে, সেই অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা শিলিগুড়ি লাক্সারি ড্রাইভার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে 18টা গাড়িকে, ভিআইপি গাড়িকে আমরা এক ফোনেই দুয়ারে অ্যাম্বুলেন্স বিনা খরচে, ফ্রি অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস ফর 24 আওয়ার্স আমরা আজকের সূচনা করলাম। সূচনায় আমাদের পুরো কর্পোরেশন আমাদের প্রচণ্ডভাবে সহযোগিতা করেছেন। তারা দায়িত্ব নিয়েছেন সমস্ত গাড়ি এবং ড্রাইভারদের স্যানিটাইজ করার ব্যাপারে। 18টা গাড়িকে আমরা প্লাই করাবো শিলিগুড়ির বিভিন্ন স্পট থেকে। 6টা স্পট তৈরি করা হবে, একটা শিলিগুড়ি এখানে থাকবে এবং এনজিপি, মিলনমোড়, মেডিকেল কলেজ, বিধাননগর, খড়িবাড়ি, এই ধরনের 6টা স্পট আমরা তৈরি করব এবং এর জন্য একটা মনিটরিং কমিটিও করা হচ্ছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, আমি শিলিগুড়ির নাগরিকদের কাছে করজোড়ে আবেদন রাখব, এই সময়ে যখন আমাদের ড্রাইভার ভাইরা রিস্ক নিয়ে কাজ করছে, তারা কোভিড পিরিয়ডে বাড়িতে যাবে না, তারা সেই সব ক্যাম্পেই রাত্রিবাস করবে, 24 ঘন্টা থাকবে, কারণ 24 ঘন্টা ফ্রি সার্ভিস দেওয়ার জন্য। তাই তাদের প্রতি যেন হেয় বা অবজ্ঞা দেখানো না হয়, তাদের প্রতি যেন সহানুভূতি দেখানো হয় যে সাধারণ মানুষের ডাকে আসছে। কারণ আপনারা জানেন এখন রুগী নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো অ্যাম্বুলেন্স, কোথাও প্রাইভেট অ্যাম্বুলেন্সগুলা 15,000, 20,000, 30,000 করে ডিমান্ড করছে। তার জন্যই আমরা আজকে আমাদের নেতৃবৃন্দের অনুপ্রেরণায়, আজকে সকলের উপস্থিতিতে আজকে এটা আমরা কর্মসূচি লঞ্চ করলাম। পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের আরও কিছু এ ধরনের কর্মসূচি নেওয়া হবে, যে কর্মসূচিতে থাকবে ফোন করলেই দুয়ারে স্যানিটাইজার। আমাদের নেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং যুব আইকন সর্বভারতীয় যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি এমপি অভিষেক ব্যানার্জি যে সংকল্প করিয়েছেন আমাদের, মানুষের সাথে থাকতে হবে, মানুষের সেবায় থাকতে হবে, সেই অনুপ্রেরণা থেকেই আজকে আমরা শিলিগুড়ি লাক্সারি ড্রাইভার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে এবং শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অনুমোদনে আমরা এই ফোন করলেই দুয়ারে অ্যাম্বুলেন্স, ফোন করলেই দুয়ারে অ্যাম্বুলেন্স, কোভিড পেশেন্ট এবং সিরিয়াস পেশেন্টদের জন্য তাদের শিলিগুড়ি মহকুমার যে কোনো এলাকা থেকে টেলিফোন করলে আমরা সেখান থেকে তাদের মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল, বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোমে আমরা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিচ্ছি এবং সেটা পুরোপুরি ফ্রি সার্ভিস। আমরা পুরো ফ্রি সার্ভিসেই আমরা এই সেবায় ব্রতী হয়েছি। আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং আমাদের অভিষেক ব্যানার্জির অনুপ্রেরণাতে আমরা এই কাজে নেমেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত কোভিড না সরছে, কোভিড পিরিয়ডে আমাদের এই সেবা থাকবে। পরবর্তী পর্যায়ে আজকে এটা ইনাগরেশন হচ্ছে। কর্পোরেশনকে আমরা অনুরোধ জানিয়েছিলাম আমাদের গাড়িগুলো যারা পেশেন্ট ক্যারি করবে সেই গাড়িগুলো এবং ড্রাইভারদের प्रॉपर सैनिटाइजेशन করে দিতে। भारी मात्रा में शराब के साथ एक गिरफ्तार। लॉकडाउन के बीच सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एनजेपी थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर शनिवार को फुलबाड़ी बाईपास से सटे एक मकान से भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब बरामद की। एनजेपी पुलिस सूत्रों के अनुसार छापेमारी के दौरान गुरुपाड़ा मंडल नामक एक शख्स को शराब की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी को आज यानी रविवार को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण दुकान पाट बंद है, इसलिए कुछ लोग घरों में अवैध तरीके से शराब बेच रहे हैं। पुलिस उनके खिलाफ लगातार अभियान चला रही। रेलवे हॉकरों ने ट्रेन में काम करने की अनुमति देने की मांग उठाई। दिया ज्ञापन। राष्ट्रवादी रेलवे हॉकर्स यूनियन ने स्टेशन परिसर में हॉकर्स का उच्छेद नहीं करने की मांग में सिलीगुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे अधिकारी को ज्ञापन दिया। संगठन के
सदस्यों ने आरोप लगाया कि कोरोना महामारी काल में हॉकरों को स्टेशन परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, जिससे हॉकरों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। इसके साथ ही वे लोग अपने काम को लेकर अनिश्चितता महसूस कर रहे हैं। संगठन के सदस्यों ने वर्तमान में कम संख्या में चल रही ट्रेनों में कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए उनके काम करने की अनुमति देने की मांग। आज के বিষয়টা হচ্ছে যে এখানে রেল প্রশাসন এই প্ল্যাটফর্মে আমাদের যারা হকার ভাইরা আছে, যারা দীর্ঘদিন থেকে তারা প্ল্যাটফর্মে ফেরি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করেন। গত 7 দিন হয়ে গেল রেল প্রশাসন ওই মানে হকার ভাইদের প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে দিচ্ছে না। আমরা রেলে গত 21 তারিখে অ্যাসিস্ট্যান্ট সিকিউরিটি কমিশনারকে একটা মেমোরেন্ডাম দিয়েছি, এডিআরএমকে দিয়েছি, আজকে আরপিএফ এর ইন্সপেক্টরকে আমরা দিলাম, বললাম যে আপনারা এই যে এদেরকে যে ঢুকতে দিচ্ছেন না, এরা যে কাজ করতে পারছে না এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে, এদের পরিবার পরিজন নিয়ে এরা না খেয়ে আছে। ইমিডিয়েট যদি এই অর্ডার প্রত্যাহার না করা হয় তবে হকাররা তাদের পরিবারের লোকদের নিয়ে আপনাদের ঘরের সামনে এসে ধর্নায় বসবেন। जलाशय में गिरा हाथी शावक, वन कर्मियों ने निकाला बाहर। वन विभाग ने रविवार को जलाशय में गिर पड़े एक हाथी के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जानकारी के अनुसार अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी प्रखंड में रविवार सुबह हाथी का बच्चा आदमा बीट के जलाशय में गिर पड़ा। खबर मिलते ही अलीपुरद्वार के बक्सा बाग परियोजना के पाना रेंज के वनकर्मी मौके पर पहुंचकर हाथी के बच्चे को जलाशय से बाहर निकाला। इस जलाशय से पाना बस्ती के इलाके में पानी की आपूर्ति की जाती है। वन विभाग अधिकारियों ने बताया कि जलाशय की दीवार तोड़कर पानी से हाथी के बच्चे को बाहर निकाला गया। उन्होंने बताया हाथी शावक को जंगल में छोड़ दिया गया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in. At Veda School of Languages,
VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रेड वॉलंटियर के सदस्यों ने महत्वपूर्ण स्थानों को किया सैनिटाइज, बांट रहे मास्क एवं सैनिटाइजर। रेड वॉलंटियर के सदस्यों ने रविवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के 31 नंबर वार्ड के शीतलपाड़ा इलाके को सैनिटाइज किया। संगठन के सदस्यों ने लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के साथ ही उन्होंने मास्क एवं सैनिटाइजर भी बांटे। इस अवसर पर संगठन के सदस्यों ने कहा वे लोग कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ ही उन्होंने विभिन्न प्रकार के सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका मिशन लगातार चलता रहेगा। कालियागंज में 2 स्थानों में तेजी से दी जा रही है वैक्सीन। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों से लेकर बुजुर्गों को मिल रहा है टीका। पूरे राज्य के साथ साथ उत्तर दिनाजपुर जिले में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमितों के साथ साथ कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। कोरोना की रोकथाम के लिए पूरे राज्य में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही तेजी से टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज नगरपालिका के तत्वाधान में नगरपालिका स्वास्थ्य केंद्र एवं कालियागंज स्टेट जनरल हॉस्पिटल में कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। नगरपालिका स्वास्थ्य केंद्र में 18 से 40 एवं अस्पताल में 45 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को वैक्सीन दी जा रही है। इधर अस्पताल में जहां वैक्सीन दी जा रही है वहां किसी तरह का कोई शेड नहीं रहने से बुजुर्गों को कतार में खड़े होने में काफी दिक्कतें हो रही है। हालांकि कालियागंज व्यवसायी समिति की ओर से यहां शेड लगा दिया गया। যারা কোভিড ভ্যাকসিন নিতে এই রোদ্রের মধ্যে লাইন দিয়ে দাঁড়াচ্ছে, বয়স্ক লোক, তারা অনেকেই অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। তাদের কথা চিন্তা করে এই ব্যবসায়ী সমিতির তরফ থেকে একটি শেড হসপিটালের দুটো সেন্টারের সামনে করে দেওয়া হয়েছে এবং সঙ্গে আগামীকাল থেকে পৌরসভার তরফ থেকে জলও রাখবে, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। लॉकडाउन से बेपरवाह टोटो चालकों को पुलिस ने पकड़ा, दी कड़ी चेतावनी। राज्य भर में लॉकडाउन के ऐलान के बावजूद सिलीगुड़ी की विभिन्न सड़कों पर निर्धारित समय के बाद भी टोटो को इधर उधर दौड़ते देखा जाता है। लॉकडाउन के 8वें दिन सिलीगुड़ी के हाशमी चौक पर आज कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला। पुलिस ने इन टोटो चालकों के खिलाफ अभियान चलाते हुए लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में कई टोटो चालकों को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में लॉकडाउन का पालन करने के कड़े संदेश के साथ इन टोटो चालकों को छोड़ दिया गया। गौरतलब है कि सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की ओर से लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ईटहर के पूर्व विधायक अमल आचार्य का 1.5 महीने में हुआ भाजपा से मोहभंग, अब लौटना चाहते हैं फिर से तृणमूल कांग्रेस में। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब ईटहर विधानसभा से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मुशर्रफ हुसैन के नाम की घोषणा की थी, तो ईटहर के पूर्व विधायक तथा तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता अमल आचार्य ने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उत्तर दिनाजपुर जिले में विधानसभा मतदान के लिए सिर्फ 15 दिन ही बचे थे तो पार्टी छोड़कर वे भाजपा का दामन थाम लिए थे। 7 अप्रैल को ईटहर के चौरास्ता में आयोजित एक कार्यक्रम में
केंद्रीय नारी और महिला कल्याण राज्य मंत्री देवश्री चौधरी और बालूरघाट के बीजेपी सांसद सुकांत मजुमदार ने उनको भाजपा का झंडा देकर पार्टी में स्वागत किया था, लेकिन इटहर से वहां हार गए हैं और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार मुशर्रफ हुसैन विधायक बने हैं। लेकिन इस बीच अमल आचार्य का भाजपा से मोह भंग हो गया है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं की गिरफ्तारी की घोर निंदा की है, विशेषकर मंत्री फराद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी की। उन्होंने कहा कि वह फिर से तृणमूल कांग्रेस में लौटना चाहते हैं। केंद्र सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के लिए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को पत्र लिखा है। हालांकि इस संबंध में तृणमूल कांग्रेस के उत्तर दिनाजपुर जिला के अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल ने कहा कि वह इस विषय में कुछ नहीं जानते हैं। আমি তো বললাম একবারে আমার কিছু জানা নেই এই ব্যাপারে, যদির উপরে কিছু হয় না, যখন জানবো তখন তারপরে কোনো মন্তব্য করব। रविवार को भी मछली बाजार रहा फीका, गंगा में शवों के तैरने से डरे हैं लोग। जलपाईगुड़ी मछली बाजार में रविवार को लोगों को मछली की जगह अंडे खरीदते देखा गया। इधर अंडे की मांग बढ़ने के साथ ही जलपाईगुड़ी बाजार में अंडे के दाम बढ़ गए हैं। गौरतलब है कि गंगा नदी में काफी संख्या में शवों के तैरने की तस्वीरें देखने के बाद आम लोग बड़ी मछलियां नहीं खरीद रहे हैं। इससे मछली व्यापारियों को घाटा हो रहा है। यह तस्वीर राजगंज के जलपाईगुड़ी स्टेशन बाजार, डेंगुआझार बाजार, दीन बाजार, बेलाकोबा बाजार समेत विभिन्न बाजारों में देखने को मिल रही है। व्यापारी बता रहे कि बड़ी मछलियों की मांग घटी है। खरीदारों का कहना है कि लोग इस डर से मछली नहीं खा रहे हैं कि गंगा समेत विभिन्न नदियों से काफी संख्या में शव तैर रहे हैं। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि रोहू, कटला आदि मछलियां गंगा नदी की नहीं है। इन मछलियों का पालन किया जाता है। इसके बाद भी लोग इसे मानने को तैयार नहीं है। उनका यह भी कहना है कि रविवार के दिन बाजार में पहले की तरह मछली नहीं बिक रही है। एक तरफ लॉकडाउन के कारण कुछ देर के लिए दुकानें खुली रही है, ऊपर से बिक्री नहीं है। उन्होंने प्रशासन से इस बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने का आग्रह किया। ছোট মাছের দিকেই বেশি প্রেফার করছি, কারণ গঙ্গায় যে লাশ দেখা গেছে বা এইসব যেসব টিভিতে আমরা নিউজ দেখতে পাচ্ছি তাতে বড় মাছের প্রতি আসক্তিটা একদমই কমে গেছে। চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব ছোট মাছই নেওয়া। হ্যাঁ, ডিমটা অবশ্যই ডিমের দিকে ছোট হচ্ছে, কারণ রোজ তো বাজারে আসা হচ্ছে না, বড় মাছও নেওয়া হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে ডিমের দামটাও একটু বেড়েছে, কিন্তু উপায় নেই, খেতে হচ্ছে। যেরকম সময় সেরকমভাবে চলতে হচ্ছে। হ্যাঁ, কাতল মাছ রুই মাছের দাম আগের তুলনায় অনেকটাই কম। বড় মাছ খাচ্ছে না, গুজব যেটা গঙ্গা লাশ ছড়ানোর কারণে বড় মাছ খাওয়া লোকে বন্ধ করছে, কিন্তু সেই জায়গার মাছ তো আমাদের দিকে আসে না। আমাদের তো অন্ধ্রের মাছ আছে, ড্যামের মাছ আছে, হ্যাঁ কলকাতা সাইডের কিছু মাছ আছে, লোকাল মাল আছে, বাটা আছে। বাজারে তো অবস্থা এমনি খুবই খারাপ। তারপরে প্রশাসনিক যে নিয়মটা করছে 10টা অবধি, সেটা প্রশাসন নিজের তরফ থেকে ঠিকই করছে, কিন্তু কমপক্ষে কাঁচামালের জন্য 1 ঘন্টা কমপক্ষে ছাড় দেওয়া তো উচিত। আমরা 9টার মধ্যে মাল কিনে বইসে আর 1 ঘন্টার মধ্যে বসবো, बेचबो ना किनबो ना की करबो हमरा। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।